ٹوٹے دل پھر سے جڑ جائیں گے، کھوئے ہوئے پھر سے مل جائیں گے۔ اس رمضان المبارک آپ کے لیے کن کے معجزات اتر آئیں گے۔ مطمئن ہو جائیے کیونکہ اب آپ کے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ آپ کے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور آسمان سے آپ کے لیے کن فیکون کے معجزے بس آنے ہی والے ہیں۔ آپ کو جو ناممکن لگ رہا تھا ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کے لیے سچے دل سے دعائیں کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی چاہ سے انکار تو نہیں کرتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا صبر سنبھال کر رکھا ہے، وہ آپ کی صدائیں رد نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین نوازنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہے۔ بہت جلد آپ کا نصیب بدلنے والا ہے، آپ کو وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے آپ کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ آپ مایوس ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، انشاءاللہ اب بہت جلد آپ خوش ہونے والے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے دعاؤں سے فوراً معجزات نہیں بھی ہو تو دعائیں آہستہ آہستہ اپنے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرما دیتے ہیں، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مایوس کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی تو آپ دعا کر رہے ہیں، جو آپ مانگ رہے ہیں۔ اگر تھوڑی سی تاخیر ہو بھی رہی ہے تو کیوں بے چین ہو رہے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ توکل اور یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کریں، پتہ نہیں کون سا لمحہ قبولیت کا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے جب انسان ہزار گناہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، سچے دل کے ساتھ معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منانے میں لگ جاتا ہے۔ اسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو نہ سنے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر ہی تو ساری کائنات چل رہی ہے نا۔ اگر آپ کا دل نہ بھی راضی ہو رہا ہو تب بھی آپ نے دعاؤں کو کرتے رہنا ہے، کیونکہ جو امید اور یقین آپ کر رہے ہیں یہی آپ کی دعاؤں کو قبول کروائے گا۔ اگر آپ کا توکل سچا ہے تو یقیناً آپ کے لیے معجزات ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ معجزات کرتے ہیں۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگ رہا ہوگا کہ دعا نہ جانے کہاں رک گئی ہے، کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے، اتنے سارے لوگوں کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کیا میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا مجھ میں ایسی کیا بات ہے؟ جب انسان یہ سب کچھ سوچنے لگ جاتا ہے یقیناً دعا مانگنے میں بہتری بھی آنے لگ جاتی ہے اور دعا میں دل بھی لگ جاتا ہے، اور کچھ دعائیں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنی بھی تو پڑتی ہیں نا، اور کچھ دعائیں فوراً قبول کر لی جاتی ہیں کیونکہ وہ دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دعاؤں کو آپ سے وقتی طور پر اگر دور کر بھی دیتے ہیں تو وہ آپ کے مقدر کا حصہ بنانے کے لیے اور بہترین کر کر آپ کو نوازنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن آپ کے دل سے انہیں کبھی نکالا نہیں جاتا ہے۔ جب آپ کو بار بار توفیق ملتی ہے نا دعا مانگنے کی، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ دعا کیجئے نا، آپ کیوں مایوس ہو گئے ہیں؟ ان دعاؤں کے لیے آپ کا سجدہ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا بے انتہا پسند آ جاتا ہے۔ آپ اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیے اور تسلسل کے ساتھ دعاؤں کو مانگتے رہیے، توکل رکھیے، یقین رکھیے، بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کہانی کو مکمل کرنے والے ہیں اور آپ کی زندگی میں معجزات ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी, आज बहुत ही प्यारी सी जो 2 मिरेकल स्टोरीज हैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। पहली मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ दरूद ताज, और सेकंड मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ सूरह फील। अल्लाह सुब्हान व तआला बेशक मौजिज़ात कर देने पर कादिर हैं, बस तवक्कुल के साथ, यकीन के साथ अपनी दुआओं के सिलसिले को जारी रखिए और फिर देखिए कैसे मौजिज़ात होते हैं। तो मेरी प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राजी हो जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो सवाल आया था, ये भाई का सवाल था और इन्होंने लिखा था, अस्सलामु अलैकुम, आप ही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ना चाहते हुए भी किसी के लिए कोई बुरी बद्दुआ या कोई ऐसे अल्फाज हमारी जबान से बार बार निकले, क्योंकि अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो क्या हमें बद्दुआ देनी चाहिए? अगर हम अपने आप को समझाते भी हैं कि हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन जब वो तकलीफें याद आ जाएं तो फिर दोबारा से वही सारी बातें और कैफियत हो जाती है जो कि इंसान को बाद में पछतावा होता है, जो कि हमारे मुंह से किसी के लिए बदुआ निकल जाती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे सवाल को शामिल करें और मुझे इस चीज का जवाब दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको और आपके सुनने वालों को खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने जो है इस सवाल को हमारे से शेयर किया है और मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन के और नॉलेज के मुताबिक ही जवाब देना चाहूंगी। क्योंकि बात तो ये है कि हम सब बहुत गुनहगार हैं, मैं खुद बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला जब हमें तौफीक देते हैं कि आओ तो मेरे पास, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तो हम क्यों नहीं दिल बड़ा करके लोगों को माफ कर देते हैं। जब हम अल्लाह पाक से माफी की उम्मीद रखते हैं और हमें इस बात का यकीन होता है कि जब हम अल्लाह सुब्हान व तआला से मांग रहे हैं तो डेफिनेटली इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला तो जरूर हमारे गुनाहों को, गलतियों को माफ फरमा देंगे। लेकिन हम लोग अपने दिल को इतना सख्त कर लेते हैं किसी भी मामले में कि हम कहते हैं कि नहीं, बस ये हो ही नहीं सकता, उस इंसान के लिए कर्सिंग करने लग जाते हैं, जबान से ऐसे अल्फाज निकाल देते हैं जो कि किसी को वैसे भी नागवार गुजरते हैं और वैसे भी जो है हमें बोलने के बाद दुख होता है। तो देखिए, शैतान करवाते हैं इंसान से ऐसे काम जो करवा लिए जाते हैं, उसके बाद जब इंसान को पछतावा होता है तो तभी आप अपने दिल को बड़ा कीजिए और दिल को साफ कर लीजिए। देखिए, जब हम किसी को माफ करते हैं ना, उसके बाद जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून फिर आपको कहीं और नहीं मिल सकता। अगर आपके दिल में कहीं ना कहीं पर ऐसी सख्ती मौजूद है कि नहीं, किसी ने मेरे साथ इतना बुरा किया तो मैं कैसे किसी को माफ कर सकता हूँ, ये कैसे किसी को माफ कर सकती हूँ, तो वहीं पर आप ये सोच लें कि अल्लाह पाक से जब मैं माफी तलब कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो अल्लाह पाक भी तो मुझे माफ कर रहे हैं ना। तो आप भी अपने दिल को बड़ा कर उस इंसान को माफ कर दीजिए। किसी ने आपके साथ बुरा किया या बार बार कोई आपके साथ बुरा कर रहा है या किसी भी तरीके से आपको परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ा है और ना चाहते हुए भी आपकी जबान से किसी के लिए बददुआ निकल रही है या कोई बुरे अल्फाज निकल रहे हैं, तो कम से कम आप जब किसी को माफ कर देंगे आपका दिल भी मुतमईन हो जाएगा। और बार बार ये जो आप कह रहे हैं कि आपकी जबान पर किसी के लिए बुरे अल्फाज आ जाते हैं, किसी को आप बुरी बात कह देते हैं, ऐसा नहीं होगा। और देखिए, जब हम अपने दिल को साफ कर लेंगे ना, हमारी जिंदगी के वैसे ही सारे मामला ठीक हो जाते हैं। हम जो बेसुकून रहते हैं, बेचैन रहते हैं, हम जो इन चीजों को देखते नहीं है और हम ये सोच रहे होते हैं पता नहीं अब क्या होगा, हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही, हमने तो किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया। हम अपनी जबान से कितने सारे लोगों के साथ बुरा कर रहे होते हैं, हम तो ये सोचते ही नहीं है। हम इवन कि अगर किसी को ज्यादा इबादत करता हुआ देख लें तो हम उसको जज करने लग जाते हैं। उसके बाद ये बहुत ज्यादा तस्बीहात कर रही हैं, पता नहीं अब ये क्या पढ़ रही हैं। हम लोग जो है लोगों को फौरन जज करते हैं और ये जज करने की जो हमारे अंदर आदत है ना, हमें इस बात को कंट्रोल कर लेना चाहिए वक्त रहते हुए और किसी के बारे में बुरा ना सोचे। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मुझे पता है वक्ती मुश्किल होती है, मेरे कहने से, मेरे अल्फाज बोल लेने से बहुत आसान होगा, लेकिन असल बात ये होती है कि जब आप अपने दिल को बड़ा करते हैं और जो मर्जी कोई कह रहा है आप खामोश होकर मुस्कुरा कर आसमान की तरफ देखते हैं ना, जो अल्लाह सुब्हान व तआला है, जो कुल कायनात के मालिक है, जो आपके भी अल्लाह पाक है, मेरे भी अल्लाह पाक है, हमारे लिए बेहतरीन इंसाफ करते हैं और
उस इंसान को एहसास भी दिलाते हैं कि उसने आपके साथ कितनी जगहों पर बुरा किया। लेकिन मैं ये कहूंगी कि ना चाहते हुए भी किसी को कभी बद्दुआ ना दें, क्योंकि देखें बद्दुआ देने से आप भी नेगेटिव होते हैं, उस इंसान की जिंदगी में भी कहीं ना कहीं पर कोई ऐसा मामला होता है जो उस मकफाते अमल की फिर सजा बहुत बुरी मिल जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, और मैंने जो अपनी जिंदगी से भी सीखा है कि जब इंसान किसी को माफ कर देता है, अपने दिल को बड़ा कर कर कोई बुरी बात किसी के लिए नहीं कहता है, तो अल्लाह पाक मदद भी भेजते हैं, वसीले भी बनते हैं। उसकी हिदायत के लिए भी दुआ करें, अपनी हिदायत के लिए भी दुआ करें। और एक और जो छोटा सा सवाल था वो भी मैं शामिल करना चाहूंगी। ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आप ही, मेरा सवाल ये है कि रमजान में हम तहज्जुद सहरी बनाकर पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप ही 4 o'clock या आप ही 4:15 तक, काइंडली बता दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला बेटा आपको खुश रखे, अल्लाह पाक के ईमान में रहे, आमीन सुम्मा आमीन। जी बिल्कुल बेटा, जैसे कि अगर आपने सहरी पहले बना ली है और अभी जो है फजर की अजान में बहुत वक्त रहता है, तो फिर जो है आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकती हैं सहरी बनाकर। उससे ये होता है कि इंसान का दिमाग भी रिलैक्स होता है और कोई ऐसे ख्यालात भी नहीं आते हैं कि अभी मैंने सहरी बनानी है, मैंने ये काम करना है, ऐसे करना है, तो इस तरह के वहम भी नहीं आएंगे। आप जो है बेहतर यही है कि सहरी पहले बना लें, थोड़ा टाइम पहले फजर की अजान में, जैसे कि अभी वक्त रहता है सहरी कीजिए, और सहरी करने के बाद जब फजर की अजान हो जाए तो फिर आप रोजा रख लीजिए। कि जो पहली मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ दरूद ताज से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती है, अस्सलामु अलैकुम आप ही, आप कैसी हैं, की प्यारियां कैसी हैं, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। ऐसा है कि आप ही, मैं आपको अपने भाई की मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। ऐसा था कि भाई की एज इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि हम लोग बहुत परेशान थे कि भाई के रिश्ते वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो बस फिर आप ही ऐसा था कि जगह जगह पर जाकर मेरी अम्मी भी थक चुकी थी, और आप ही इशू कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रुकावट जो आ रही थी जॉब के सिलसिले में आ रही थी, और एक रिश्ते के सिलसिले में वजह हो रही थी। ऐसा था कि भाई तो कहीं ना कहीं पर मुतमईन थे, लेकिन जब लोग भाई से सवाल करते थे कि भाई शादी क्यों नहीं कर रहे हो, सवाल हमारे घर के माहौल को और हमारी फैमिली को बहुत डिस्टर्ब करता था। अब आप ही किसी इंसान के बस में तो नहीं होता है कि वो खुद अपनी शादी कर ले, जब नसीब में लिखा है तभी होनी है, लेकिन ये बात है कि कोशिश तो इंसान करता ही है। अब आप ही मसला ये भी था कि जॉब भी कहीं पर होती थी तो 2 दिन जॉब होती थी, उसके बाद जो आप ही वहां से जॉब खत्म हो जाती थी। बस ऐसी सारी रुकावटों का सामना करते हुए मेरे भाई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे थे। अब आप ही भाई को ये लगता था कि भाई का जो फ्यूचर है वो उनकी जॉब में है, और अगर वो जॉब करेंगे तो ही उनकी लाइफ जो है वो स्टेबल हो सकती है। लेकिन आप ही अल्लाह पाक ने जो इंसान के लिए सोचा होता है, वो जो आप ही प्लानिंग होती है वो बहुत बेहतरीन होती है। अब आप ही हुआ ये कि मेरे भाई के पास बहुत ही अच्छी डिग्री होने के बावजूद कहीं पर जॉब नहीं मिल रही थी। तो इसी दौरान आपके चैनल के बारे में मुझे किसी ने बताया, और मैंने आपसे अपने भाई के मामले को डिस्कस किया। आपने कहा कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें, दरूद इब्राहिम पढ़ें, और दरूद ताज के बारे में भी आपने बताया था कि तहज्जुद की नमाज के बाद 2 नवाफिल सलातुल हाजात के पढ़ने हैं, और 41 मरतबा 41 मरतबा दरूद ताज पढ़ना है, अव्वल आखिर एक एक मरतबा दरूद इब्राहिम के साथ। बस फिर आप ही इसी तरीके से मेरे भाई भी पढ़ रहे थे ताकि उनकी जॉब हो जाए, और मेरी अम्मी भाई के रिश्ते के सिलसिले में भी पढ़ रही थी और उनकी जॉब के लिए भी पढ़ रही थी। ऐसा मौजिजा किया कि मेरे भाई के एक दोस्त हैं, उन्होंने जो है भाई को कहा कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। ऐसा हुआ कि जब इस मामले को भाई ने अब्बू से डिस्कस किया तो अब्बू तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि बिजनेस भी बहुत अच्छा और प्रॉफिट के साथ था। तो आप ही अब्बू ने कहा कि तुम वक्त ना लगाओ, देखो जॉब मिलनी होती तो तुम्हें अभी तक मिल जाती, हो सकता है तुम्हारे नसीब में जॉब की जगह बिजनेस करना लिखा हो। तरीके से सपोर्ट करूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस फिर आप ही दरूद ताज पढ़ने से अल्लाह ताला ने भाई के उस दोस्त का ऐसा वसीला बनाया कि भाई का जो इशू बन रहा था जॉब का, भाई जो है अपने उस दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। और आप ही अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दुआ कबूल
हुई थी हमारी तकरीबन आप ही टोटल जो है 18 दिनों की ये दुआ थी जो कि अल्लाह पाक ने कबूल की और मेरे भाई का वसीला उनके दोस्त के थ्रू बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही अल्लाह पाक का शुक्र है कि भाई खुद कहते हैं कि मैं बिला वजह परेशान होता था अपनी जॉब के लिए, लेकिन अल्लाह पाक ने जो मेरे लिए सोचा था वो बहुत ही बेहतरीन था। बिला वजह परेशान हो रहा था, अल्लाह पाक के हर काम में बेहतरी होती है। जैसे कि बताया था दरूद ताज पढ़ने के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे भाई के रिश्ते के सिलसिले में भी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले ऐसा हुआ है कि मेरी अम्मी की एक दोस्त थी, उनकी पूरी फैमिली जो है सिटी में शिफ्ट हो गई थी क्योंकि उनके फादर की पोस्टिंग होती थी, इसीलिए तो फिर आप ही उनसे मिलना हमारा हुआ और बेटी के साथ जो है मेरे भाई के रिश्ते के सिलसिले में बात चल रही है। तो मेरे भाई पहले भी पसंद थे लेकिन बस कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से पहले बात नहीं बन सकी। अब आप ही कल ही हमारे भाई ने हमें ये बताया कि वो जो है उनकी बेटी को पहले भी पसंद करते थे लेकिन जॉब ना होने की वजह से इसीलिए वो जो है बात नहीं करते थे। अल्लाह पाक की तरफ से देखिए कैसा हुआ है कि अल्लाह पाक ने उसी लड़की को मेरे भाई के नसीब में लिखा है। बस अब जो थोड़ी सी रुकावटें आ रही हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक आगे के सारे मामलात भी आसान कर दें, जो थोड़ी सी रुकावटें आ रही हैं वो भी हल हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही दरूद ताज पढ़ने से मेरे भाई का बिजनेस भी स्टैब्लिश हो गया है और आप ही साथ अल्लाह पाक ने उसकी जो मोहब्बत थी जो कि किसी को पता भी नहीं थी और सिर्फ कह लें कि आप ही उसकी छुपी मोहब्बत जो कि उसके दिल में थी अल्लाह पाक ने उन्हीं को जो है वसीला बनाकर दोबारा उनकी जिंदगी में भेज दिया है। अल्लाह पाक सबके लिए मौजिज़ात करें और सबके दिलों की दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने भाई की मिरेकल स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। अल्लाह पाक आपको बेहतरीन नजर अता फरमाए और अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी खुशियां अता फरमाए और इंशाअल्लाह के हक में बेहतरीन है, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां करे इंशाअल्लाह। इनके भाई अपने लिए समझ रहे थे कि उनके लिए जॉब बेहतरीन है लेकिन अल्लाह पाक ने उनके लिए बिजनेस में उनका नसीब लिखा था। तो देखिए अल्लाह पाक ने कैसे वसीले बनाए और कैसे रास्ते खोले माशाल्लाह से कि जो कि उनके भाई की पहले पसंद थी लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया क्योंकि जॉब ही नहीं थी। तो ये भी कितना प्यारा मौजिजा हुआ है कि उसी लड़की के दोबारा से घर वालों के साथ इन लोगों की अटैचमेंट हुई है और दोबारा से जो रिश्ते का सिलसिला है अब वो चल पड़ा है। बाकी अल्लाह पाक इनके लिए सानिया फरमाए। प्यारियों इनको जो है मैंने बताया था कि तहज्जुद की नमाज के बाद 2 नवाफिल सलातुल हाजात के पढ़ने हैं और 41 मरतबा दरूद ताज पढ़ना है। मैं जो है स्क्रीन पर मेंशन भी कर दूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और अव्वल आखिर एक मरतबा दरूद इब्राहिम भी पढ़ना है। और जो भी दुआ है, जो भी हाजात हैं, कोई भी ऐसे काम में रुकावट है, बिजनेस से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड, अल्लाह पाक से दुआ करें इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर करम फरमाएंगे। और मेरी प्यारियों अब जो सेकंड मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ सूरह अल फील, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियां अता फरमाए, सब पर अपना खास करम फरमाए, सबके दिलों की हाजात को, दुआओं को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप ही मैं आपको अपनी मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ जो कि आप ही कुछ सालों पहले ऐसा था कि मैं नमाज की पाबंद नहीं थी, दीन से दूरी थी। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने अपनी जिंदगी के कितने साल जो है दीन से दूरी में गुजार दिए। मुझे लगता था कि अगर जिंदगी में आसाइशें होंगी तो ही जिंदगी अच्छी है और तो ही आपके दोस्त भी अच्छे बनते हैं, लेकिन मैं गलत थी। अब आप ही ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी में चेंजिंग पॉइंट यहाँ से आया जबकि आप ही मुझे मेरी बहुत ही करीबी दोस्त ने धोखा दे दिया और आप ही मुझे पता चला कि मैं जिस पर एतबार कर रही थी तो मेरी वही दुश्मन थी। लेकिन आप ही बस कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जब नीयत देखते हैं तो अल्लाह पाक फिर साथ भी देते हैं। मेरी एमफिल की डिग्री जब कंप्लीट हुई तो आप ही फिर उसके बाद जो है मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैंने जॉब करनी है। अब आप ही ऐसा हुआ कि एक जगह पर मुझे जॉब की ऑफर आई और मैंने वहां पर जॉब के लिए अप्लाई भी किया, ऑप्शन में ही मेरा नंबर भी आ गया और आप ही फिर जो है मैंने वहां पर जॉब स्टार्ट कर दी। अब ऐसा था कि जहां पर मैं जॉब कर रही थी मुझे वहां पर सुकून नहीं मिल रहा था और कहीं ना कहीं पर मेरे दिल में ऐसा होता था कि पता नहीं मुझसे कितनी गलतियां ऐसी हो गई हैं कि अब मुझे अल्लाह पाक माफ भी फरमाएंगे या नहीं फरमाएंगे। अब आप ही ऐसा होता है कि मैं इस बेसुकूनी के आलम में कहां कहां पर नहीं गई। मुझे अपने मुस्तकबिल के बारे में जानने का बहुत शौक होता था तो मैं काफी सारे लोगों से कांटेक्ट करती थी और पूछती थी कि ये बेचैनी किस वजह से होती है, अपनी जिंदगी में इतनी बेसुकून
बेसुकून क्यों हूँ। बस फिर आप ही एक वजह तो वो थी जो कि मेरी दोस्त की तरफ से मेरा दिल टूट चुका था। दूसरी वजह ये थी कि जो कि मैं जॉब तो कर रही थी, लेकिन आप ही मुझे ये ख्याल नहीं था कि मुझे पर्दे का भी ध्यान रखना है। बस फिर आप ही अल्लाह पाक का ये शुक्र है कि देखते ही देखते मुझे मेरी गलतियों का एहसास होता गया, और जहां जहां पर मैं कांटेक्ट कर कर अपने मुस्तकबिल के बारे में जानती थी, लोगों को पूछती थी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैंने उन सारे रस्तों को, दरवाजों को बंद कर दिया। और बस फिर आप ही एक रात ऐसी थी मेरी जिंदगी में कि जब मैं अल्लाह पाक के आगे रो रो कर दुआएं कर रही थी, मेरी जिंदगी को आसान कर दीजिए, मैं क्यों इतनी बेचैन रहती हूँ, मुझे किस बात की बेसुकूनी है। अल्लाह पाक आपका दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं पर मेरी आंखों के आंसू क्यों नहीं सूखते हैं। मैं अंदर ही अंदर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हूँ, और मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में इतनी प्राउड रही हूँ कि अगर मैंने किसी को कुछ कहा तो लोग ये कहेंगे कि आज ये जो है रो रही है और इसको जो है इसके किए की सजाएं मिल रही हैं। बस फिर ऐसा था कि यहाँ से मेरी जिंदगी बदलती जा रही थी और अल्लाह पाक से मैं दुआ करती जा रही थी। अब आप ही एक दिन ऐसा हुआ कि मैं शाम को बैठी हुई थी तो मेरे फोन पर एक मैसेज आता है, जो कि आप ही जिनसे पहले मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में काफी कुछ जानती थी, उन्होंने ही मुझसे खुद कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आपने जवाब नहीं दिया, आपकी कुछ चीजें हमारे पास पड़ी हैं, हमने आपको भेजनी थी। मैंने उनको साफ साफ इनकार कर दिया और मैंने कहा कि आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा और मुझे कोई चीजें नहीं चाहिए। अब मैं फौरन से उठी हूँ और मैंने जाकर जानिमाज बिछाया और मैं फूट फूट कर रोने लग गई, क्योंकि मुझे लगा कि मैं कितनी गफलत में पड़ चुकी थी। मुझे तो ये पता ही नहीं चल रहा था कि ये बेसुकूनी और बेचैनी जो है ये अल्लाह पाक से दूरी है, और ये दूरी को जब मैं खत्म कर दूंगी तो सारा सुकून भी मिल जाएगा और बेचैनी भी खत्म हो जाएगी। ऐसा था कि बस इसी तरह रात रात को रोती रहती थी, तहज्जुद की नमाज के वक्त अल्लाह से दुआएं करती थी। एक दिन आप ही रोते रोते ही जानिमाज पर मेरी आंख लग गई और वहां पर आप ही मुझे सूर्य अल फील जो है वो लिखी हुई नजर आती है। बस फिर आप ही उसके बाद जो है मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठ गई और मुझे लगा कि अल्लाह पाक ने ये मुझे जो है इशारा दिया है कि मैं जो है सूर्य फील पढ़ूं। बस फिर आप ही मैंने लातादाद बार सूर्य फील पढ़नी शुरू कर दी और अल्लाह पाक की तरफ से आप ही मेरी जिंदगी पूरी बदल कर रह गई। मैंने अबाया पहनना शुरू कर दिया, हिजाब करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी ऐसे बदलती जा रही थी। मेरे घर वाले भी हैरान थे कि इतनी ज्यादा मैं कैसे बदल सकती हूँ। मैंने आप ही जिसका दिल दुखाया, मैंने उनसे जाकर माफी मांगी, कुछ लोगों से फोन पर कांटेक्ट किया, बस आप ही कुछ लोगों ने तो माफ कर दिया। मैंने अपनी उस दोस्त को भी माफ किया जिसने आप ही मेरे साथ बहुत बुरा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही सूर्य फील पढ़ने से मेरी जिंदगी बदल गई और अल्लाह पाक के मैं करीब हो रही हूँ। आप भी दुआ कीजिएगा कि जो अभी मैं सीख रही हूँ अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियां कर दे, और जो मैंने अपनी जिंदगी के सफर को चुना है बस अल्लाह पाक मुझे हिदायत के रास्ते पर चलाएं, क्यों पता नहीं इस दुनिया की गफलतों में डूबे हुए हैं। अभी भी हमारे पास वक्त है, हमें अल्लाह पाक से मांग लेना चाहिए, हमें संभल जाना चाहिए, क्योंकि आप ही वक्त रहते हुए अगर इंसान को ये समझ आ जाए कि दुनिया फानी है और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाना है, और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो क्या हमारे हाथ में कुछ ऐसे अमाल हैं जो हमें बख्शवा सकते हैं, या कब्र का अजाब हमारे से कम हो सकता है। मुझे बहुत खौफ आता था उस वक्त में भी जबकि आप ही मैं हिदायत के रास्ते पर आ रही थी, और आज भी मुझे खौफ आता है कि अल्लाह पाक बस मुझसे राजी हो जाए और मेरे गुनाहों को माफ कर दे, और जो साल मैंने दीन से दूरी में गुजार दिए हैं अल्लाह पाक मुझे माफ फरमा कर मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह मेरी बाकी दुआएं भी अल्लाह पाक कबूल करेंगे और अल्लाह पाक सब बेहतरीन कर देंगे। कि मेरी आप ही जो बड़ी वाली बहन है उसकी एज जो है 38 इयर्स हो चुकी थी, और उसकी जो है आप ही एक जगह पर इंगेजमेंट हुई थी और वहां से टूट गई थी। अभी जो है उसका जो आप ही रिश्ता आया है वहां पर इंशाल्लाह उसका निकाह हो रहा है। सूर्य फील जो है मैं लातादाद पढ़कर सबके लिए दुआ करती थी, अपनी बहन के नेक नसीब के लिए भी दुआ करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही अल्लाह पाक का शुक्र और करम है कि अल्लाह पाक ने ना कि सिर्फ मेरी जिंदगी को बदल दिया, मेरी बहन के नसीब को भी दोबारा से जगा दिया, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप ही हमारी जिंदगियों में ऐसे खुशियां आई हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। जो बंद दरवाजे हो चुके थे अल्लाह पाक ने वो भी खोल दिए हैं। बस दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब से राजी हो जाएं और हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, और अल्लाह पाक हमारी गलतियों को माफ फरमा कर 5 वक्त की नमाज की तौफीक दें, और जिंदगी की आखिरी सांसों तक जो है
ہمارا سر سجدے میں رہے، اللہ پاک کے سامنے جھکے، کسی انسان کے سامنے کبھی نہ جھکے۔ سنتے ہیں جو آپ کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول کریں، اور اللہ پاک آپ کے بیٹے کی خوشیاں آپ کے نصیب کریں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ، اتنی پیاری لائف چینجنگ سٹوری جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اور بے شک اللہ کی راہ میں ہی سکون ہے، انسان جہاں مرضی چلا جائے لیکن سکون صرف اللہ پاک کے سامنے ہی ملتا ہے، اور اللہ پاک سے بات کر کر ہی ملتا ہے۔ بس اللہ پاک سب کے حق میں آسانیاں فرمائے اور خوشیاں عطا فرمائے میری پیاری بہن، اور آپ ہم سب کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا، کیونکہ جس طرح سے آپ نے بتایا اور جو آپ کے لفظوں میں آپ کی کیفیت تھی وہ میں محسوس کر سکتی ہوں، اور بے شک اللہ پاک کے حکم سے ہی سب کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دے، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور آپ سب کے لیے تو ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کے دلوں کی حاجات کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں نیک اور صالحہ اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اولاد کو نیک اور صالحہ فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سب کے گھروں کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں، سب بیماروں کو اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی، اللہ حافظ۔